ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिः ओम्. That which we call the outer world is perfect. This which we call the inner world is perfect. Each one filled with divine consciousness. Perfect comes from perfect. Take perfect from perfect. The remainder is perfect. Divine consciousness is non-dual. Anything that emerges from the divine consciousness is whole, is complete, is Purna. May peace and peace and peace be everywhere. Om Shanti, Shanti, Shanti. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. So, hello everybody and welcome to the Purnamada series. As you know, in this series, we interview a lot of past life regression therapists who've been working for a very long time. And the kind of experience that they've gained working over the years and also their insights can add to your own understanding of rebirth, reincarnation, and past life regression therapy. And today we have Richa Suman Vyas. Hi, Richa. Namaste. And Namaste, ma'am. Namaste. I'm so happy to be here, to be with you. absolutely, I'm also very happy. I think I'm seeing Richa after quite some time. And just to let everybody know that Richa has been a management graduate, but wasn't too happy with her management life. Let's find out more about that. And then moved from management to metaphysics. Not only that, but she trained herself as a past life regression therapist, and she's a fantastic hypnotist, hypnotherapist, and she even teaches. So it's a huge range from 2012 to 2025, the kind of progress that she has made. And I'm really interested in knowing more about that. So, Richa, welcome. And first, I want to know about this transition because many of my therapists have been in the corporate world and then have moved from the corporate world by the time they are 40, 42. But I know you moved a little earlier, if I'm not mistaken. So I want to know what really happened working in the corporate world and what made you feel that's not your place. So I would like to start with the much talked about series or that serial that came on NDTV, Raas Pichle Janam Ka, that has been inspiration for many like us, right? So I was watching that serial, and you are very well aware of my phobia of a very little insignificant thing. And I was searching for its answer. So even during my school days, my college days, when I came across one article in the newspaper, I was very intrigued by knowing that okay, so there is this concept of past life, and we can visit it and find the answer. So I was really intrigued. Apart from that, I've been interested in such topics like
life between lives, what happens after death, what happens to the soul. एंड जब भी कोई बात करता था किसी के पुनर्जन्म की, कि सो एंड सो वहां पे कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको बचपन से सारी चीजें याद है और किस तरह वो सही निकली, आई वॉज रियली फैसिनेटेड। मेरे मन में कभी भी एक बार ये डाउट नहीं आया कि नहीं नहीं ये ट्रू नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ और रीजन होगा। सो आई काइंड ऑफ ऑलवेज बिलीव्ड इन दिस कंसेप्ट। Then, as you know, I came in contact with you. I wrote to you during that serial only because I wanted to come to your show. And luckily, I was selected. And you selected my story and your team decided to invite me. But unfortunately, I couldn't come because I was already pregnant 5 months. And Oh. you told that, the unborn child goes into fear and that is not advisable. So I had to let go that opportunity. बट आई बिलीव कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बिकॉज अगर मैं उस प्रोग्राम में आती तो शायद मेरी जर्नी वहीं एंड हो जाती। बट सिंस मुझे वो आंसर वहां नहीं मिला, मैं नहीं जा पाई, सो आई कीप परसुइंग यू। वन डे आई मैसेज यू अगेन कि मुझे एक प्राइवेट सेशन चाहिए। देन यू इन्फॉर्म मी कि मेरी 2 दिन की वर्कशॉप हो रही है मिस्टिक जर्नी दिल्ली में। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू अटेंड इट। आई थॉट कि ओके यहाँ मुझे आंसर मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मुझे वो आंसर उस क्लास में भी नहीं मिला। ऑल्दो दैट क्लास आई थॉरली एंजॉयड बिकॉज बहुत सारे मिस्टिकल कंसेप्ट जो मेरे माइंड में थे उनका आंसर मुझे मिला। एंड वाज रियली फैसिनेटेड, दैट क्लास वाज रियली फैसिनेटेड। Hmm. Then I came to know about your therapist program. So, it kind of blew away my mind because by that time I didn't know कि हम सीख भी सकते हैं और ये काम हम खुद कर सकते हैं। सो वो किस तरह मैं थेरेपिस्ट प्रोग्राम के लिए मैंने एनरोल किया, दैट वाज अगेन अ कॉन्स्पिरेसी बाय यूनिवर्स बिकॉज मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आ पाऊंगी। बट फाइनली आई केम देयर, आई अटेंडेड दैट 7 days प्रोग्राम विच वाज वंडरफुल टाइम, मेमोरेबल टाइम ऑफ माय लाइफ। एंड उसके बाद जैसे कि हम बोलते हैं यूनिवर्स आपको एक टाइम पे सपोर्ट करता है, फिर एक टाइम पे आपके अगेंस्ट हो जाता है, कुछ कॉन्स्पिरेसी चालू हो जाती है। तो जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की मेरे पास काफी इजी इजी सब्जेक्ट्स आए जो फटाफट ट्रांस में गए। एंड इन्होंने अपनी पास्ट लाइफ देखी एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि Hmm. वाओ अब तो मेरा काम चल पड़ा। ऑल्दो दैट टाइम Hmm. आई वाज नॉट चार्जिंग और डूइंग इट प्रोफेशनली, बट वो सेशन करके मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। देन यूनिवर्स सेंट मी अ क्लाइंट हु Hmm. वुडंट गो इनटू ट्रांस एट ऑल। Correct. सो आई वॉज रियली पजल कि क्या है। उसके बाद मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो सर्च किए कि और कैसे मैं इनको डीप हिप्नोसिस में ले जाऊं, क्या रीजन हो सकता है। एंड इन दैट क्वेस्ट आई ज्वाइंड अ कोर्स फॉर क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। मुझे लगा शायद हिप्नोथेरेपी को मैं और डिटेल में सीखूंगी तो मैं ये काम को और इफेक्टिवली कर पाऊंगी, और जो लोग नहीं ट्रांस में जा पा रहे शायद उनको भी मैं ले जा पाऊं, उनको भी आंसर्स मिल पाए। सो दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। एंड एज वी से कि एक बार आप इस फील्ड में आ जाते हो तो आपकी स्पिरिचुअल शॉपिंग भी चालू हो जाती है। सो आई डिड मेनी अदर कोर्सेज विद यू, शब्द योगा, देन टैरो रीडिंग एंड मेनी अदर थिंग्स। सो दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड, ऑल थैंक्स टू यू। या रिचा, आई थिंक तुमने जो कहा वो सही है कि एक बार इसका टेस्ट जब आता है ना तो ऐसा लगता है कि और डाइव करे और डीपर इस चीज में चले जाए। एग्जैक्टली एंड लाइक यू, एग्जैक्टली एंड as you just said that hypnotherapy is something that you learned in a deeper manner. तो जब आप हिप्नोथेरेपी सीखते देन यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द माइंड एंड दैट द यस माइंड इज इनफाइनाइट। इतना एग्जैक्टली इनफाइनाइट है माइंड के उसके डीपर 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 जाके, लाइक आई ऑलवेज टेल पीपल दैट वी आर एक्चुअली अ प्लम्बर, है ना, हमें डिग करना है, राइट। वी राइट हैव टू कीप डिगिंग टिल वी रीच द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली ड्यूरिंग योर जर्नी इन हिप्नोसिस, जैसे कोई जब आपके पास आता है तो ऑब्वियसली यू नीड टू एक्सप्लेन टू देम अबाउट द माइंड। यस। तो कैसे एक्सप्लेन करती हो? आई स्टार्ट विथ थ्योरी ऑफ माइंड। ये जो थ्योरी ऑफ माइंड है या जो माइंड का मॉडल है, इट वाज गिवन बाय डॉक्टर जॉन कैपस एंड इट इज अ पेटेंटेड मॉडल। मतलब इसकी डिटेल्स आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगी। हम्म। So that's something I learned. I take my own time to explain them. हम्म। And it's a very wonderful feeling to introduce people to their own mind. हम्म। Because जब मैंने ये सीखा था, माइंड के बारे में जाना था, although
the concept of conscious mind and subconscious mind was not new to me, because in my graduation I studied psychology. Then again during MBA I studied psychology again. Hmm. But therapeutic purpose से जो हम mind explain करते हैं, that is something different, totally different. Hmm. So I start explaining them the concept. They understand कि okay, जो काम हम कर रहे हैं इसका एक scientific basis है. It is not something hocus pocus or superstition or something like that. जो Hmm. बाबा लोग करते हैं कि अरे आपको hypnotize कर दिया, पता नहीं क्या होगा. Hmm. So I explain them the concept of mind, how subconscious mind works, and how powerful it is, and how your whole life is run by your subconscious mind. Then Hmm. they get to understand, they get intrigued, and this gives them confidence to explore more. Because हमारी लाइफ के 90% प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कहाँ से आ रहे हैं हमें नहीं पता. True. सो उस रूट तक जाने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करना पड़ता है. सो दैट इज हाउ आई स्टार्ट. Hmm. And then there are myths also. People come with या certain एब्सोल्युटली. myths of hypnosis, है ना? तो ऐसे कोई 5-6 myths है जो तुम्हें लगता है as an audience people should understand? Common myths, among common myths, one of them is, which I just explained, people have this fear of, being controlled by hypnotists. क्योंकि हिप्नोसिस के नाम पे वो सिर्फ दो ही चीजें जानते हैं. एक तो स्टेज हिप्नोसिस, जहाँ हिप्नोटिस्ट आपको कंट्रोल करके कभी आपको बोलेगा मुर्गे की आवाज निकाल के बताओ, डांस करके बताओ, तो वो दे बिकम बट ऑफ जोक. दूसरा जो हिप्नोसिस वो जानते हैं वो है वशीकरण, जो कि बाबा लोग प्रैक्टिस करते हैं, कि आपको हिप्नोटाइज करके आपके पैसे निकलवा लिए, आपके जेवर निकलवा लिए, आपका नुकसान कर दिया, यू नो वो माइंड कंट्रोल. सो मैं ये उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ आपका माइंड कंट्रोल नहीं होगा. ओनली एम इज टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड, बट इट डजंट मीन दैट कि आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाएगा. आपका कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव रहेगा. आपको पता होगा कि आप कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, आपको क्या बोला जा रहा है. और जब आप ट्रांस से बाहर आओगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा कि आपने थेरेपी में क्या किया. So I explain the difference between Eastern hypnosis and Western hypnosis. Western hypnosis that we practice, it Hmm. has a clinical approach. It is Correct. done in a clinical setup. Hmm. ये कोई बाबा वाला काम नहीं है. That is Eastern hypnosis, which is very powerful, but unfortunately उसको लोग बाग अच्छे कामों के लिए नहीं यूज करते हैं. Otherwise उससे ज्यादा पावरफुल कुछ है नहीं. तो कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट ऑडियंस को कि वशीकरण एग्जैक्टली कैसे होता है? आर देयर सर्टन पीपल जिनके ऊपर वशीकरण जल्दी काम करता है, एंड देयर आर सर्टन पीपल कितना भी बाबा जी वशीकरण करने की कोशिश करे उसका असर नहीं होगा. सो देयर मस्ट बी डिफरेंट पीपल रिस्पॉन्डिंग Absolutely. डिफरेंटली, राइट? तो उसके ऊपर कुछ Absolutely. कुछ बात करना चाहोगी कि सो दैट पीपल Absolutely. आर अंडरस्टैंडिंग कि हम्म. वशीकरण क्या है बेसिकली, एंड क्लिनिकल हिप्नोसिस यू हैव एक्सप्लेन क्या है, बट हम्म. वशीकरण एग्जैक्टली होता क्या है, एंड कैन एवरीबडी be under that spell, because that's more like a spell. Yeah. This is more like Yeah. a clinical way of getting you to move into your mind by, let's say, suggestions. Or this Right. is more like a spell. Okay, वशीकरण Yeah. तो explain Exactly. करो कि थोड़ा तो people will understand it better. यहाँ पे कंसेप्ट आता है सजेस्टिबिलिटी का, चाहे वो ईस्टर्न हिप्नोसिस हो या वेस्टर्न हिप्नोसिस हो. सम पीपल आर मोर सजेस्टिबल. Hmm. दैट मीन्स इफ वी आर गिविंग देम सजेशन, दे बिलीव इट टू फास्ट विदाउट क्वेश्चनिंग. सो उनका माइंड, हम कह सकते हैं कि वी आर एबल टू एक्सेस देयर सबकॉन्शियस माइंड वे टू इजीली. Hmm. सो यहाँ सजेस्टिबिलिटी की बात आती है. कुछ लोग होते हैं जो लेस सजेस्टिबल होते हैं, ज्यादा लॉजिकल होते हैं. Hmm. वो इतनी जल्दी आपकी बात को यकीन नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, वो अपना लॉजिक लगाएंगे. तो ऑब्वियसली उनको उस स्टेट में ले जा पाना डिफिकल्ट होता है. मुश्किल तो नहीं होता है, बट डिफिकल्ट होता है. बट Hmm. ईस्टर्न हिप्नोसिस में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में मुझे बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं है कि Hmm. वहाँ उनका परसेंटेज मे बी इट इज मोर. क्योंकि एक कंसेप्ट होता है मर्मा पॉइंट्स, कि किसी ने Hmm. आपके शोल्डर पे टच किया. सो वो Hmm. पॉइंट टच करते ही यू गेट इनटू दैट स्टेट, जैसे हम डीप ट्रांस कहते हैं, जहां आप Hmm. ज्यादा सजेस्टिबल हो जाते हो. वन Hmm. थिंग इज दैट. Hmm. सेकेंड थिंग व्हाट बाबा लोग डू, they capture your third eye. That is what I heard. They capture Hmm. your third eye, and Hmm. they keep putting on suggestions without you knowing about it. Hmm. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई किसी को बिजनेस में लॉस हो रहा है और वो किसी बाबा के पास गया कि बाबा मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो. Hmm.
सो बाबा कहेंगे ठीक है हो जाएगा काम, लेकिन आपको कुछ वो ह्यूज सम बताएंगे अपनी फीस का, फॉर एग्जाम्पल कि आपको 5 लाख रुपीज की पूजा करानी पड़ेगी। हम्म सो डैट बिजनेसमैन इज लाइक कि मैं ऑलरेडी सफर कर रहा हूँ, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा। तो बाबा कहेंगे कोई बात नहीं, आप घर जाओ आराम से सोचो, नेक्स्ट डे मुझे बताना। हम्म सो इतनी देर में बाबा लोगों के पास वो सिद्धि होती है या शक्ति होती है, आई डोंट नो व्हाट, बिकॉज सच सम पीपल आर मोर सजेस्टेबल। हम्म सो वो उनकी थर्ड आई कैप्चर कर लेते हैं, और जब वो घर जाता है तो उसको वो थॉट देना शुरू करते हैं। हम्म एंड अगले दिन वो जब सो के उठता है तो उसको लगता है कि नहीं नहीं मुझे ट्राई करना चाहिए, एंड वो फिर बाबा के पास जाता है। तो बाबा उसको बोलेंगे कि क्या हुआ, कल रात को तो सोच के सोया था कि बाबा फ्रॉड है, अब क्या हुआ। हम्म तो वो आदमी इतना इम्प्रेस हो जाएगा कि बाबा आप तो अंतर्यामी हैं और आप तो सब मन की बात जानते हैं, फिर वो बाबा जो कहेंगे वो करेंगे। सो हम्म ऐसे केसेस होते हैं। हम्म हम काफी कुछ सुनने को मिलते, कैसे केसेस सुनने को मिलते हैं कि किस तरह ट्रैफिक सिग्नल पे किसी ने आपको आके कुछ बोला, और हम्म सडनली यू डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड, आपने सारे रुपए उसे निकाल के दे दिए। ऐसे कई केसेस मेरे खुद स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किए हैं जब मैंने उनको हिप्नोसिस के बारे में बताया। So it हम्म is very much true. I don't know how they do it, but yeah, that is the case. करेक्ट। सो जैसे तुमने कहा ना, सी नीड जो है ना, जब इंसान की नीड अति हो जाती है, माने व्हेन यू आर डेस्परेट, देन बाबा विल यूज डेस्परेट मेजर्स। Exactly. सो द थिंग इज द, अगर आप डेस्परेट है, आपने 10 साल लॉसेस हुए हैं, एंड नाउ somebody said this baba he can solve all problems, so now you have gone to this person, and now this person has, he's an expert, right? He Yes. knows Yes. exactly what to say, how to look at you, and you are so weak, आप इतने वीक Right. हो गए हैं कि आपकी बैक बेंट हो गई है। अब आपके पास यही एक जरिया है। So Exactly. whatever happens now, whatever the Baba says, you will take it as such, मतलब gospel truth है ये, ठीक है? And Exactly. moment that Baba knows that अब he has caught you, पहले तो वो आपके मन को कैप्चर करेंगे। लाइक Hmm. रिचा ने कहा कि थर्ड आई क्या है? थर्ड आई इज नथिंग बट एबल टू सी बियॉन्ड। तो बाबा जी जो है वो आपके बियॉन्ड देख सकते हैं, बिकॉज उनके पास आप जैसे हजारों लोग आए हैं, लाखों लोग आए हैं। सो ही नोज एग्जैक्टली व्हाट टू से, द वर्ड्स दैट यू यूज। जैसे यू विल यूज सर्टन वर्ड्स सो दैट द क्लाइंट बिकम्स रिलैक्स्ड, बाबा जी विल Right. यूज सर्टन वर्ड्स दैट द क्लाइंट बिकम्स ट्रैप्ड। सो डिफरेंस वही है, शब्दों का ही खेल है ये, एक तो। और दूसरा Exactly. ये है, क्योंकि वो व्यक्ति इतना डेस्परेट हो गया है अभी, कि ही विल डू एनीथिंग व्हाट द बाबा जी टेल्स यू टू डू। सो दिस इज एग्जैक्टली, जैसे कि स्टेज के ऊपर अ हिप्नोटिस्ट, ही सेज एनीथिंग एंड क्लाइंट डज एनीथिंग। वशीकरण इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट सम occult scary experience, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर एक्सपर्ट एट trying to control your mind. You are an expert in a different way, where you are not controlling their mind, you are allowing them to believe, Right. that they can go deep inside their mind. तुम उनके Yeah. मन में नहीं झांक रही हो, वो खुद अपने मन में झांक रहा है। और Exactly. यहाँ पे उल्टा हो रहा है, where the Babaji thinks he is getting into your mind, so you give Yeah. all your control to Babaji. This is really the Right. difference. So there's nothing for people to feel scared about. Instead, Absolutely. instead, they should use their logical mind and not feel weak and desperate. Then only the right answers will come to there. Otherwise, there are enough people who will fleece you and take your money away, and you wouldn't even know Absolutely. what is happening. एब्सोल्युटली। Hmm. एंड तीसरी बात मैं उनको ये भी एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो हिप्नोसिस है, इसमें आपको सब कुछ यू वुड बी अवेयर। क्योंकि Correct. कई बार लोगों को लगता है कि हम शायद सो जाएंगे या कुछ अनकॉन्शियस हो जाएंगे, राइट। सो Hmm. जब थेरेपी से जब वो बाहर आते हैं तो 90% ऑफ देम हैव सेम थिंग टू से कि आई डोंट थिंक आई वाज हिप्नोटाइज्ड इन। Correct. ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। Yes. उनको लगता है कि हम तो हिप्नोटाइज थे नहीं, सारी आवाजें आ रही थी, सड़क पे हॉर्न बज रहा था, एंड अगर कुछ भी और आवाज थी, एंड आई वाज नॉट हिप्नोटाइज्ड इनफ। तो मैं Correct. उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि द मोमेंट यू क्लोज योर आईज, योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स गेटिंग इनटू दैट जोन,
And when you are more relaxed, your subconscious mind is active enough to retrieve the data from the, depth of your mind. So it is not like you were not there. And फिर बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बजाय मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप आने वाले टाइम में देखिए कि आपको क्या फर्क महसूस होता है। अगर फर्क महसूस होता है, आपको रिलीफ मिलता है आपकी प्रॉब्लम से, वेल एंड गुड। उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कितनी डेप्थ में थे या आपको नहीं फील हुआ, आप हिप्नोटाइज हुए नहीं हुए। करेक्ट। या आई थिंक समटाइम्स रिचा हम ये भी एक्सप्लेन करते हैं क्लाइंट को कि अल्फा या वेव में किस तरह एब्सोल्युटली, का एक्सपीरियंस मिल सकता है, थीटा में किस तरह का, एक तो ब्रेन वेव्स के एब्सोल्युटली, हिसाब से आपका एक्सपीरियंस वेरिएबल हो सकता है। देयर कैन बी समबडी हु इज एंटरिंग लेट्स से कैन सोमनैम्बुलिस्टिक स्टेट जो बहुत डीप एब्सोल्युटली। स्टेट है, तो वहां पे शायद क्लाइंट में इवन फॉरगेट अ लिटिल बिट, बट या लेटर या ऑन वी दे हैव वी टेंड टू हैव सच काइंड रिमेम्बर। ऑफ क्लाइंट हु गो हम्म। इनटू दैट स्टेट जहां उनको आने के बाद एक्चुअली कुछ याद नहीं रहता। सो करेक्ट। ऐसे भी क्लाइंट होते हैं। सो करेक्ट। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए तो अल्फा स्टेट भी काफी होता है, बिकॉज उनको अवेयरनेस मिलनी जरूरी है कि उन्होंने क्या देखा और उस पास्ट लाइफ से क्या लेसन लर्न किया। करेक्ट। ट्रू। एब्सोल्युटली। तो तुम्हारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, आई नो, तो कैसे डिसाइड करोगी कि इस क्लाइंट को ओनली कैन हिप्नोथेरेपी की जरूरत है और इस क्लाइंट को पास्ट लाइफ थेरेपी की जरूरत है? बिकॉज दैट डिस्टिंक्शन, बिकॉज मोस्ट हम्म, पीपल विल कम टू यू एंड से मुझे तो पास्ट लाइफ देखना है, ठीक है, हम्म, बट जब आप केस हिस्ट्री लेंगी तो शायद आप डिसाइड करेंगी कि नहीं इसको ये जरूरत है या ये जरूरत है। सो हाउ विल हम्म। यू एज अ थेरेपिस्ट डिसाइड what is going to help this client? ऐसा कोई तेरे ओके, पास, do you decide on yeah. something? So when I take history and when I come to know that this problem is really deep rooted and there is some kind of pattern set into it, and the person experiencing this problem again and again, so हम्म। that time I decide कि आपको present life की healing की भी जरूरत है। हम्म। So present life heal करना, for example, age regression, inner child healing, and then there are couple of other therapies that I explain them. हम्म। सो वहां मैं डिसाइड करती हूँ। कुछ लोगों को नहीं पता होता है डिफरेंस बिटवीन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एंड हिप्नोथेरेपी। वो हम्म। सिर्फ ये सुन के आते हैं कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है, किसी ने आपका हम्म। नाम सजेस्ट किया, हम्म। एंड दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। तो मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कुछ और भी थेरेपीज होती हैं, हो सकता है आपको एक से ज्यादा सेशन की जरूरत पड़े। सो आर यू कंफर्टेबल विद इट? हम्म। तो बोलते हैं आई नो एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट इट, सो यू डिसाइड। सो मैं हम्म। फिर अपने अकॉर्डिंग, तो मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं पहले एक थेरेपी प्रेजेंट लाइफ की करूं, सो दैट देयर माइंड गेट कंडीशन फॉर द स्टेट ऑफ ट्रांस, फॉर हम्म। माय वॉइस, फॉर माय हम्म। कमांड्स। तो हम्म। जब मैं उसके बाद पास्ट लाइफ करती हूँ, दे गो वेरी इजीली इनटू दैट स्टेट। करेक्ट। और अगर मैं हेड ऑन पास्ट लाइफ करती हूँ तो कई बार वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, इनफैक्ट हम्म। कई बार उल्टा भी होता है कि मैंने सोचा कि मैं कुछ प्रेजेंट लाइफ की थेरेपी करूंगी, बट द मोमेंट पर्सन गोज इनटू ट्रांस, दे स्टार्ट सीइंग सम सीन्स फ्रॉम द पास्ट लाइफ, देन आई गो विद द फ्लो। फिर मैं उसको हम्म। अपनी तरह से चेंज नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरा मानना है कि सबकॉन्शियस माइंड इज द बेटर जज। उसको हम्म। पता है कि आपको पहले क्या रिजॉल्व करना है। कुछ हम्म। लोगों की पास्ट लाइफ एकदम सरफेस पे होती है, वो सरफेस अप हो जाती है, तो मैं ट्रू। पहले उसको डील करती हूँ। ऐसा कई बार हुआ है कि जैसे हम इंडक्शन में स्टेयरकेस मेथड यूज करते हैं, तो हम्म। स्टेयरकेस पे जाते जाते ही वो उस लाइफ टाइम में पहुंच जाते हैं, एंड दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख हम्म। रहा है। सो हम्म। आई स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो हम्म। बेसिकली अगर मैं कुछ डिसाइड करूँ भी तो भी सबकॉन्शियस माइंड वो चेंज भी कर सकता है। सो आई जस्ट गो विद द फ्लो। आई थिंक दैट्स सो इम्पोर्टेंट रिचा, बिकॉज लोगों को ये समझना जरूरी है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सीधा पास्ट लाइफ की जरूरत है। इट इज पॉसिबल कि पहले आप करंट लाइफ की जो भी स्ट्रेसेस है शायद उसके राइट, साथ आप डील करें, बिकॉज देर राइट, कैन बी सम प्रॉब्लम्स जो इसी लाइफ से आई है एंड यू डोंट नीड एग्जैक्टली, टू गो इनटू अ पास्ट लाइफ, राइट? तो ये आई एब्सोल्युटली, थिंक क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एंड एज यू आर अवेयर, some problems can come from the womb itself. एग्जैक्टली, तो ऐसी कोई एग्जैक्टली। केस है जहां पे तुम्हें लगा कि इसी लाइफ का प्रॉब्लम था एंड वूम से रिलेटेड प्रॉब्लम था, यू डिडंट नीड टू गो टू अ पास्ट लाइफ एंड द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड? ऐसा कोई केस याद सो आ रहा है तुम्हें? So, when I do age regression and inner child healing, and I take the client back into the time and to the womb, हम्म। because मैं ये मानती हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर womb से कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, हम्म। देन उसका रूट कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में होगा। हम्म। हम्म। So, for example, there was a girl who was suffering from PCOD. हम्म। She was rejecting her femininity, हम्म। right? So when I was doing her healing, so she went into that state after healing
all the inner child, and she went into that state when she was in mother's womb, and she reported me that I'm hearing a conversation between relatives and my mother. हम्म कॉमन जो बातें होती हैं कि हम्म लड़का हो जाए तो अच्छा है, हम्म राइट? हम्म सो अब ये जो बातें हैं कई सारे बेबीज ने सुनी होंगी, बट नॉट एवरीवन डिसाइड्स टू रिजेक्ट हर फेमिनिटी. व्हाई शी इज द ओनली वन कि उसने हम्म अपनी फेमिनिटी रिजेक्ट कर दी, एंड शी वाज ट्राइंग टू बी अ बॉय इन हर माइंड कि अपने हम्म पेरेंट्स को मैं खुश तभी कर सकती हूँ जब मैं एक लड़का बनूंगी. So हम्म subconsciously she started rejecting her femininity. हम्म But then I had to go deeper. I had to explore whether this is coming from the past lives. So हम्म yes, definitely there was a past life, because past life इसके लिए है या नहीं रिस्पॉन्सिबल, अगर है तो कितनी पास्ट लाइफ हैं, उसके लिए एक छोटी थेरेपी होती है जिसे मैं कंबाइन कर देती हूँ बाकी हम्म थेरेपी के साथ, हम्म विच आई कॉल higher self therapy. So हम्म I make them talk to their higher self. They get answers directly from their higher self, whether this problem is related to present life or past life. If it is हम्म related to past life, how many past lives are responsible? They get certain answer like two or three. Then हम्म I ask next question whether we are supposed to heal all those past lives, because sometimes your higher self may say that no, this is not the right time. You are हम्म not supposed to heal those lifetimes. हम्म सो वहां से फिर मैं आगे की थेरेपी डिसाइड करती हूँ कि अब मुझे पास्ट लाइफ में ले जाना है, और ले जाना है तो कितनी लाइफ टाइम इसको हील करनी है. कई बार सिंगल सेशन में हम 2-3 पास्ट लाइफ हील कर सकते हैं, बिकॉज इफ द सब्जेक्ट इज लाइक वेरी इजी एंड गोज इनटू ट्रांस वेरी इजीली एंड गिविंग रिस्पॉन्सेज वेरी फास्ट, तो हम्म हम एक सेशन में 2-3 पास्ट लाइफ, अगर वो एक पर्टिकुलर इशू है, हम हील कर सकते हैं, और किया है मैंने. वंडरफुल, वेरी नाइस. सो जैसे तुमने कहा ना कि गर्भ में माने एज द कॉन्शियसनेस मूव्स इनसाइड द वूम, और हो सकता है कि दैट प्रॉब्लम आल्सो इज रिलेटेड टू अ पास्ट लाइफ, जैसे तुमने ब्यूटीफुली अभी एक्सप्लेन किया कि गर्भ से ही फिर आप उनको एक या दो पूर्व जीवन में लेकर जा सकते हैं, एंड दे कैन एक्सपीरियंस दैट, एंड ऑल्सो द हायर सेल्फ कैन टेल देम how many lifetimes are there, how many should be healed, or is this the right यस मैम. time or not the right time. Okay. यस Now मैम. sometimes यस what happens is like asthma, I've had cases जो umbilical cord round the neck है, मैम. and that frees itself and the asthma gets healed. तो कई बार ओके. पास्ट लाइफ की जरूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज एग्जैक्टली. द कॉज कैन बी एट या. द टाइम ऑफ बर्थ. या. सो कई बार स्पेशली एस्थमा रिलेटेड ये मेरे पास केसेस आए जहाँ पे गर्भ के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी द ट्रॉमा हैज टेकन प्लेस. या. सो इट हैपेंस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कई बार प्रॉब्लम गर्भ से शुरू होती है, जरूरी नहीं है उसके लिए पास्ट लाइफ रिस्पॉन्सिबल हो. तो हायर सेल्फ ने कई बार मना भी किया है कि दिस मच हीलिंग इज सफिशिएंट, यू डोंट नीड टू गो टू पास्ट लाइफ. करेक्ट. तो ये इम्पोर्टेंट है लोगों को समझना कि हर स्थिति हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मे नॉट बी इन अ पास्ट लाइफ. इट एब्सोल्युटली. कैन बी एब्सोल्युटली. रिजॉल्व्ड इन एज, गोइंग बैक इन टाइम इन द करंट लाइफ टाइम, रिग्रेसिंग बैक इन टाइम एट द वूम्ब. जैसे एब्सोल्युटली. रिचा ने एक्सप्लेन किया कि कई बार वहीं से इंसान एक या दो पास्ट लाइफ्स में जा सकता है. सो that is an important thing to understand. Richa, I know you work with so many different clients who experience who have experiences which are out of the ordinary. Okay, या. so I mean, my understanding is that the soul is multidimensional. Soul कोई unidimensional चीज तो है नहीं. It has lived in एब्सोल्युटली. so many different realms and so many different bodies having so many different experiences. So can you just explain the multidimensional aspect of a soul? What exactly is it? So multi-dimensional aspect of soul could be defined in an easy manner, like we are living this life, right? So a part of soul is with us. And then we have certain other lives which we have lived in the past. Although हम उसे past बोलते हैं, but at some point हम ये भी believe करते हैं कि सारी lives parallel run कर रही हैं. अर्थ प्लेन पे हम ये लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट देयर आर अदर लाइफ दैट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली. एंड हमारी सोल का एक एक पार्ट उन लाइफ टाइम्स में भी है, अगर वो रिजॉल्व नहीं हुई है तो. देन देयर इज अ पार्ट ऑफ सोल दैट इज इनटू द स्पिरिट वर्ल्ड, क्योंकि एक पार्ट हम स्पिरिट वर्ल्ड में भी छोड़ कर आते हैं, सारा पूरा परसेंटेज हम लेके नहीं आते हैं, विच इज द कंसेप्ट ऑफ लाइफ बिटवीन लाइफ एंड ऑल दैट.
So this is how we exist simultaneously into various dimensions. Present है, past है, and then एक वो state है जो timeless है. So that is how I understand the multi-dimensional nature of the soul. Hmm. Correct me if I'm wrong, or you can No, add no, something else also. Richa, absolutely. So it can be explained quite simply, like you have explained. मेरे पास एक फोन है, ठीक है, और फोन मेरे हाथ में है, but the email that I'm sending, okay, into Google, the net, the internet is more like the higher self. Okay, मेरा काफी डेटा इंटरनेट में है, हाँ, सभी डेटा मेरे फोन में नहीं है, करेक्ट है. सो मच ऑफ योर डेटा लाइज इन द इंटरनेट, right? Some of that data I have Yeah, on my phone. On my phone, on my Gmail, on my phone, some data has been deleted. So I have some control over that data. मैं डेटा को डिलीट absolutely. कर सकती हूँ, मैं इसको ट्रैश बिन में डाल सकती हूँ, मैं इसको कैटेगराइज कर सकती हूँ, मैं काफी चीजें कर सकती हूँ. सो इन माई लाइफ आई कैन डू मेनी थिंग्स विद द डेटा आई हैव, करेक्ट. मैं उसको Absolutely, कैटेगराइज ma'am. कर सकती हूँ, बट एट द सेम टाइम जैसे तुमने राइटली कहा कि सम ऑफ माई कॉन्शियसनेस, सम एस्पेक्ट ऑफ माई सोल इज इन दैट इंटरनेट, इन दैट गूगल, ओके, और वहां से मैं Yes. एक्सेस कर सकती हूँ व्हेन आई वांट टू एक्सेस इट. You have तो दैट explained wonderfully. I mean, this analogy of internet and email, लोगों के लिए समझ पाना बहुत आसान होगा. करेक्ट. तो इसका मतलब है मैं यहां भी हूं, मैं कंट्रोल भी कर पा रही हूँ, राइट. आई हैव Absolutely. माई कॉन्शियसनेस इज इन ऑल दीज ईमेल्स, आई हैव आंसर्ड सो मेनी पीपल, पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू मी. सो मैंने किसी को कुछ बोला, किसी को कुछ बोला, राइट. पार्ट ऑफ माई कॉन्शियसनेस इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सम ऑफ माई कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अप देयर, जो मैं एक्सेस कभी भी कर सकती हूँ. सो द मल्टी Absolutely. डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ द सोल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन मेनी वेज. इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ Mm-hmm. अंडरस्टैंडिंग. बट जैसे तुमने अभी कहा ना, दैट आई एम हु आई एम, लाइक यू आर रिचा, आई एम Tripti, and now some of my consciousness is being utilized in this body, Right. but a part of me is also fragmented. So when you do the inner child healing work, you are actually integrating the fragmented pieces. Is it correct to say that? Yes, ma'am. Absolutely. Hmm. So, soul fragmentation का जो concept है, soul can get fragmented in your present life as well as in your past life. Correct. बिकॉज ये जो कंसेप्ट है जहां तक मैंने सुना है ये आई थिंक शैमनिज्म से आया है, सोल Correct. फ्रेगमेंटेशन एंड सोल रिट्रीवल. तो Correct. हमारी लाइफ में जब भी कोई ट्रोमा आता है, ट्रोमेटिक सिचुएशन आती है, सो एक पार्ट, मे बी छोटा सा पार्ट, वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है मेन पार्ट से, और वो उसी टाइम में फ्रीज हो जाता है. Hmm. सो दैट पार्ट फील्स दैट इमोशन फॉर जब तक हम उसे हील नहीं करेंगे, हम उसको वापस रिट्रीव नहीं करेंगे, तो वो पार्ट आपका वही इमोशन फील करता रहेगा. जैसे फोबिया के जो केसेस है, Hmm. आपकी पास्ट लाइफ में कुछ हुआ, एंड नाउ जैसे लिजर्ड फोबिया बहुत कॉमन है, Hmm. या हाइड्रोफोबिया, किसी भी तरह का फोबिया. Hmm. सो जब आप उस सिमिलर सिचुएशन में आते हैं, सो दैट इज नॉट योर प्रेजेंट पर्सनालिटी इज गेटिंग अफ्रेड, बट योर प्रेजेंट पर्सनालिटी इज गेटिंग ट्रिगर्ड बाय द स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल दैट इज स्टिल स्टक इन दैट टाइम जोन. Hmm. सो वो आप ट्रॉमा वापस से फील करने लगते हो. और जब हम पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं या इवन इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, सो वी हील दैट पार्ट, वी ब्रिंग बैक दैट कॉन्शियसनेस, we integrate into your present personality, and that is how healing takes place. Correct. So you think that there can be many fragments? Yes, there could be many fragments depending upon the kind of trauma that one has faced. कभी मैंने कुछ साल पहले एक बुक पढ़ी थी डॉक्टर शकुंतला मोदी की, जिसमें कंसेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया था. तो जब मैंने वो बुक पढ़ी, आई वॉज वेरी मच इंट्रीग्ड बाय दिस कंसेप्ट कि Hmm. आप ट्रांस में अपनी सोल को देख सकते हो कि आपकी बॉडी में कहाँ वो एग्जिस्ट करती है, Hmm. वेदर दिस इज होल और नॉट, वेदर दिस इज फ्रेगमेंटेड. सो Hmm. जब मेरे पास काफी टाइम था, आई थिंक ये कुछ लॉकडाउन की बात है, जब हमारे पास काफी टाइम हुआ करता था, मेरे हस्बैंड के पास भी काफी टाइम हुआ करता था. सो जैसे कि आप जानती हैं, मैं पास्ट लाइफ में उतनी जल्दी नहीं जा पाती हूँ, या मे भी जाती हूँ, मैं बिलीव नहीं करती हूँ, वॉट एवर. सो Hmm. मुझे था कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ एक्सप्लोर करनी है. सो व्हाट आई डिड, आई पुट माय हस्बैंड इनटू ट्रांस बिकॉज ही Hmm. वाज फ्री, ही वाज हैविंग लॉट्स ऑफ टाइम.
एंड मुझे शौक है एक्सप्लोर करने का, नई नई चीजें ट्राई करने का. हम्म So I was like, कि why should I not try to find out my past lives through him because he's a good subject, better than me. हम्म तो बिना किसी इशू के मैंने अपने हस्बैंड को जब सजेस्ट किया कि योर कॉन्शियसनेस इज नाउ मूविंग इनसाइड माय बॉडी जस्ट टू इंस्पेक्ट वेयर माय सोल लाइज एंड हाउ डज इट लुक. हम्म सो ही इन्फॉर्म मी. सब लोगों का डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है. सो हाँ उन्होंने बताया कि मेरी जो सोल है वो इट इज लाइक दिस बिग, और वो एक गेंदे के फूल की तरह है, ऑरेंज कलर की. हम्म देन आई आस्क्ड हिम हाउ डज इट लुक. उन उसकी एजेस को ऑब्जर्व करो, उसके कलर को, टेक्सचर को ऑब्जर्व करो. तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये कॉर्नर से थोड़ी चिप्ड ऑफ दिख रही है, एज इफ हम्म सम स्मॉल पार्ट इज मिसिंग. So then I suggested him to go back to the time where I could find that lost part. हम्म So तब मुझे पता पड़ा कि मेरे सोल के 3 छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स 3 पास्ट लाइफ्स में थे जहाँ की मैंने एक ट्रॉमा फेस किया था. हम्म So that was really a very interesting session. Although किसी और क्लाइंट का मैंने स्टैंड अलोन सोल रिट्रीवल सेशन नहीं किया है, बिकॉज वो एक प्रॉब्लम लेके आते हैं, मैं प्रॉब्लम पे वर्क करती हूँ एंड जाने अनजाने हम सोल रिट्रीव करते हैं. हम्म उसे हम नहीं एक्सप्लेन करते हैं कि देखो हमने आपकी सोल रिट्रीव की है. हम्म सो वी कैन इंटरचेंज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सोल. सो वो कॉन्शियसनेस आपकी वापस आ रही है, इट इज वन एंड ओनली सेम थिंग. हम्म बट ये एक मैंने सेशन किया था जहां मैंने सोल रिट्रीवल को एक्सप्लोर किया था, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. That's wonderful. Yeah, it's like doing a kind of a surrogate session कि कोई या और आपके बारे में जो भी जानकारी है, because he's your husband, obviously you're intimately या related across lifetimes. So that is why he is also able to access a part of you. But yeah, that is very interesting, very, very interesting. So like you rightly said that fragmentation can happen multiple times in one's life. जैसे हम राइट कहते हैं देर इज फाइट फ्लाइट फ्राइट रिस्पॉन्स होता है, इसी तरह से राइट फ्रीज रिस्पॉन्स भी होता है. सो जब एब्सोल्युटली. ट्रॉमा होता है लाइफ में, तो और वी आर नॉट एबल टू ओवरकम इट, तो पार्ट ऑफ माई कॉन्शियसनेस फ्रीजेस देयर. तो कई बार होता है ना कि द पर्सन हैज टू गो बैक इन टाइम टू एज 6 और एज 10 और हम्म. एज 15, और वहां पे वो ट्रॉमेटिक सेल्व्स जो है, जिसको हम कहते हैं राइट. यंगर सेल्व्स, वो यंगर हम्म. सेल्व्स खड़े हैं, जो 6 साल का है, जो दस राइट. साल का है, जो एब्सोल्युटली. 15 साल का है. एंड देन दे हैव टू टेल यू थिंग्स, बिकॉज जो ट्रॉमा उन्होंने फील किया था मे बी एज अ एडल्ट सेल्फ, आपने उसको शायद तवज्जो नहीं दी, उसको ध्यान नहीं दिया, यू काइंड ऑफ रिजेक्टेड इट, एंड दैट इज व्हाई एन एडल्ट सेल्फ कैन हैव फीलिंग्स ऑफ अबैंडनमेंट. एब्सोल्युटली. Because एब्सोल्युटली मैम. the person who's adult is not feeling abandoned, but that 10-year-old self who felt abandoned, उसकी एनर्जी नॉट रिजॉल्व्ड, ये abandonment adult self को दे रही है. So I'm sure when you take them back, you take them to these younger selves, right? Inner child work यस जब मैम. करती हो तो, है ना? यस मैम. So that's where the frozen energy slowly starts melting, and then integration, जैसे all एब्सोल्युटली. the सो इट इज various. कॉल्ड इनर चाइल्ड हीलिंग प्लस इंटीग्रेशन. आपने हील हाँ, किया है, अब वो हील सेल्फ यहाँ खड़ा है, आप यहाँ खड़े हो, उसको इंटीग्रेट करना भी जरूरी है. करेक्ट, करेक्ट. तो इसी को, यही फ्रैगमेंट्स है, राइट? अपने एब्सोल्युटली करंट मैम. लाइफ या टाइम के फ्रैगमेंट्स है, एंड लाइक यू राइटली सेड, पास्ट लाइफ में भी हमने अपने फ्रैगमेंट्स छोड़े हुए हैं. हाँ. राइट. तो एट द एंड ऑफ मेनी मेनी लाइफ टाइम्स व्हेन यू आर क्लोज टू एनलाइटनमेंट, ये सभी फ्रैगमेंट्स, सम ऑफ देम वी नो, सम ऑफ देम वी आर अनअवेयर ऑफ. करेक्ट. ये सभी करेक्ट फ्रैगमेंट्स मैम. जब साथ में आ जाएंगे तभी पॉसिबली निर्वाण हो सकता है, वरना हम एक लाइफ टाइम, दूसरी लाइफ टाइम, तीसरी लाइफ टाइम, इन्हीं को एब्सोल्युटली. सॉर्ट आउट करने के लिए मे बी वी आर लिविंग दीज लाइफ टाइम्स. सो या, दिस इज सोल रिट्रीवल, यूर राइट, कम्स फ्रॉम अ वेरी शामनिक कॉन्सेप्ट है ये, बट इट्स अ वेरी रियल कॉन्सेप्ट, या बिकॉज sometimes you can also have a fragment in some other yoni, like animal yoni. या या एब्सोल्युटली. तो वो फ्रैगमेंट भी आपको कई बार रिट्रीव करना पड़ता है. सो दैट्स हाँ समथिंग दैट या वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो जब ये फ्रैगमेंटेड सेल्व्स वापस आ जाते, हाउ मच टाइम डू यू फील मोस्ट ऑफ योर क्लाइंट्स रिपोर्ट बैक एंड से दे आर फीलिंग होल एंड कंप्लीट, और वट एवर प्रॉब्लम वाज देयर हैज नाउ गॉट रिजॉल्व? कुछ टाइम फ्रेम तुमने देखा हुआ है? मैम, इट डिपेंड्स बिकॉज सम ऑफ द क्लाइंट्स दे
feel instant change, and हम्म they message me very next day कि हम्म so and so happened without me हम्म asking, because मैं थोड़ा avoid करती हूँ फीडबैक खुद होके मांगने में। हम्म मुझे लगता है कि उन्हें टाइम देना चाहिए, और जब उन्हें हम्म लगे कि सच में कुछ असर हुआ है, कुछ वर्क करेक्ट किया है, तो वो हम्म बोलेंगे, वो ज्यादा बेहतर है क्रेडिबल होगा। क्योंकि करेक्ट मैं अगर पूछूंगी तो हो सकता है वो मेरा मन रखने के लिए बोल देंगे कि यस यस आई एम फीलिंग ग्रेट एंड ऑल दैट, या हाँ यू यू नेवर नो। सो मैं वेट हाँ करती हूँ। सो हाँ कई क्लाइंट्स मुझे वेरी नेक्स्ट डे, और या इवन जस्ट आफ्टर सेशन, ये भी होता है कि सेशन खत्म होते ही, आपने भी नोटिस किया होगा कि सेशन खत्म होते ही क्लाइंट्स बोलते हैं हाँ हमको बहुत लाइट फील हो रहा है, करेक्ट और बहुत अच्छा लग रहा है, इतना लाइट हमें हम्म कितने टाइम बाद फील हुआ एंड ऑल दैट। हम्म एंड या कुछ नेक्स्ट डे की कुछ वाकई उन्हें चेंज लगा। मेंटली तो चेंज होता है कई बार, फिजिकल इश्यूज में भी उनको चेंज बहुत जल्दी देखने को मिलता है। ऑन हम्म दी अदर हैंड कुछ लोगों को महीना निकल जाता है, 2-3 महीने निकल जाते हैं। हम्म जैसे अगर मैं खुद अपना एग्जांपल दूं, जब हम हम्म ऋषिकेश में थे और आपने एक डेमोस्ट्रेशन मेरे ऊपर किया था उस हाँ फोबिया को ट्रीट करने के लिए। फियर ऑफ सो पिजन्स बर्ड्स फियर ऑफ ऐसा बटरफ्लाई कुछ एक्चुअली। बटरफ्लाई ओके हाँ या सो आई डिडंट गो इनटू दैट लाइफ टाइम जहाँ से करेक्ट फोबिया स्टार्ट हुआ। मैंने कुछ डिफरेंट सा देखा, एंड मुझे लगा कि अरे मुझे तो आंसर नहीं मिला। एंड व्हाट वाज दैट, एक कोई बुढ़ा आदमी है जो खांस रहा है, खांसते खांसते उसकी डेथ हुई है एंड ऑल दैट। सो बट लेकिन वहां से आने के बाद काफी टाइम निकल गया, 2-3 महीने बाद मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो मुझे फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती थी, हम्म वो मेरी काफी हद तक रिड्यूस हो गई है। And then I realized, okay, this is a result of the session that I underwent with you in करेक्ट Rishikesh. तो कई बार आपको काफी टाइम निकल जाता है, आप नहीं कोरिलेट कर पाते हो कि जो रिलीफ आपको मिल रहा है, पहली बात मिल भी रहा है कि नहीं, और मिल रहा है तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ। सो यू हैव टू बी वॉचफुल अबाउट हम्म योर कंडीशन, सो दैट यू कैन मेक डिसीजन कि ये हमको कितना रिलीफ मिला उस सेशन से, एंड उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो हम्म मैं खुद अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि बहुत ज्यादा कभी भगवान की दया से इशू मेरी लाइफ में रहे नहीं, तो अगर मैं सेशन करती नहीं हूँ तो मुझे नहीं समझ में आता है क्या चेंजेस हम्म आए हैं। बट ओवर द टाइम मैं नोटिस करती हूँ कि पहले मैं ऐसी नहीं थी, अब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, या वॉट एवर चेंजेस आई फील इन माई सेल्फ, देन हम्म आई रियलाइज कि ये हीलिंग का ही एक पार्ट है, जो मेरी जर्नी चल रही है इतने सालों से। आई एम हम्म इवॉल्विंग विद टाइम। हम्म अच्छा रिचा एक चीज बताओ मुझे जैसे कि क्लाइंट ने सेशन कर लिया आपके साथ ठीक है नाउ समटाइम्स द क्लाइंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सेशन जैसे कि व्हाट दे एक्सपीरियंस्ड इसका क्या मीनिंग है कई लोग पूछते हैं कि मैम इसका क्या मीनिंग आप बताइए तो आप इंटरप्रेट करती है या आप किस तरह से सेशन को फिजिकली क्लोज करेगी So most of the things that I do in the session itself, कि वो हम्म ट्रांस में ही जब वो स्टेट में है, तो हम्म मैं उससे आई शुड आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन, कि उनको अवेयरनेस मिले उसी स्टेट में। फॉर एग्जांपल, जब मैं हायर सेल्फ पे ले जाती हूँ तो मैं हम्म पूछती हूँ कि हम्म हायर सेल्फ ने आपको ये लाइफ टाइम क्यों दिखाई, आपने यहाँ से क्या सीखा, हम्म आपको यहाँ से क्या गाइडेंस मिला। तो वो अपनी हम्म लैंग्वेज में बताते हैं, और जैसे मैं नोट करती हूँ, फिर मैं हम्म बाद में उनको जब उनसे बात करती हूँ, सेशन हम्म क्लोज करती हूँ, तो मैं उनको बताती हूँ कि दिस इज व्हाट यू हैव सीन एंड दिस इज व्हाट यू हैव रिस्पॉन्डेड एंड दिस इज द गाइडेंस दैट यू गॉट फ्रॉम योर हायर सेल्फ। हम्म अगर उसके बाद भी उन्हें कुछ डाउट होता है तो मैं उसे और सिंपल टर्म्स में, सिंपल लैंग्वेज में अपनी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। सो विल दे सो मैं क्या करती हूँ ना रिचा तुम कर सकती हो ये आई जनरली टेल देम टू फिनिश दिस द सेशन खत्म होने के बाद आई गेट देम टू राइट आउट द सेशन ओके। तो जब वो लिखते हैं तो हम्म। एक कॉन्शियस इंटीग्रेशन हो जाता है जो सबकॉन्शियस ओके। लेवल पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है उनका कई बार तुमने देखा होगा कि क्लाइंट्स हमें सब कुछ नहीं बताते जैसे वट एवर हाँ, दे आर राइट। एक्सपीरियंसिंग इन द सेशन दे विल राइट। जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर दे रहे हैं बट मे बी दे आर एक्सपीरियंसिंग मोर बट वो हम एब्सोल्युटली, क्वेश्चन नहीं पूछ एब्सोल्युटली। रहे तो वो आंसर नहीं दे रहे हैं तो वो इट हैपेंस मोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस द ज्यादा टाइम। कर रहे हैं और हमें कम कम बोल रहे हैं कई बार ऐसा भी राइट। होता है सो व्हेन दे राइट इट डाउन देन दे राइट आउट इन डिटेल एब्सोल्युटली। फिर जब वो सो ये एक अच्छा डिटेल आइडिया आपने लिखते मुझे हैं बताया हाँ जब कि जब हाँ जब वो डिटेल में लिख लेते हैं ना तो हम्म। उनको एक कॉन्शियस इंसाइट मिल जाती है कि ओ इसीलिए एंड देन यू कैन आस्क देम व्हाट डू यू थिंक हाउ डू यू हम्म। थिंक दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज सबकॉन्शियसली तो आपने इंटीग्रेशन कर लिया आस्किंग द हायर सेल्फ ये सब ऑल वट एवर बट एंड आपने आप जनरली तो मैं कहती हूँ कि आपको लिखना चाहिए सब कुछ है ना और रिकॉर्ड करिए जो राइट।
राइट। बट पोस्ट दैट जब वो लिखते हैं सेशन, तो न्यू इंसाइट डेवलपमेंट होता है उनका। यू जनरली आर मैं कहती हूँ एब्सोल्युटली आप घर राइट मैम, चले क्योंकि जाइए। हाँ। हाँ, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो वो राइटिंग भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। सो इट्स करेक्ट। एक्चुअली वेरी गुड आइडिया दैट यू सजेस्टेड, कि हम्म। वो जब खुद लिखेंगे तो उनको और ज्यादा अवेयरनेस आएगी। बिकॉज कई बार क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैं ये भी फील कर रही थी बट मैंने उस टाइम आपको बताया नहीं। ऐसे कई बार होता है। करेक्ट। करेक्ट, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। बहुत दे कॉमन, विल टेल या। यू कि हमने ये भी देखा, वो भी देखा, दे हम्म। डिस्क्राइब मोर। तो जनरली मैं कहूंगी क्लाइंट को, आप जाइए, घर जाइए, लिख लीजिए, ठीक है, हम्म। एंड यू हम्म। सेंड मी अ कॉपी। ओके। तो वो कॉपी मुझे भेज देते हैं, सो आई कैन हम्म। कलेक्ट द डॉक्यूमेंटेशन हम्म। फ्रॉम देम ओनली। हम्म। तो उससे क्या होता है, सपोज 3-4 साल बाद कई लोग मुझे कॉल करते हैं, मैम हम्म। मैं आपके पास आई थी 2000, वो डेट बोलते हैं, मैम हम्म। आपको याद है? मुझे कैसे याद होगा, आई कांट रिमेम्बर। बट क्योंकि उन्होंने मुझे लिख के भेजा है और मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, आई कैन इजिली गो एंड देन आई कैन ओके। स्पीक टू देम। ओके। तो अदरवाइज क्या होगा, तुम अपनी नोट्स देखती जाओगी, हम्म। 2-3 साल राइट। बाद तुम्हें कैसे याद होगा क्या हुआ था, क्या नहीं राइट। हुआ था। राइट। So this is a good thing. I want to tell all people who are therapists, it's a good idea for your client to write out the session, send you a copy of the session. Of course, it's confidential, but send you a copy of the session so that अगर वो क्लाइंट सपोज 2 महीने बाद आपके पास वापस आती है, हम्म। तो फिर आपको यू हैव टू रिमेम्बर ना क्या हुआ था, यस क्या मैम, नहीं यस हुआ मैम। था। दिस इज एंड द एक्चुअली वेरी गुड क्लाइंट। आइडिया। आई विल हाँ। ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट। या। बिकॉज एक रेडी आपके पास होता है वो नोट्स। बिकॉज इतनी सारी नोटबुक्स भर जाती हैं कि 4 साल बाद तो आपको ढूंढना भी मुश्किल होगा। करेक्ट, करेक्ट, इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, है ना। और जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे सालों साल, तो कहाँ पे इतनी सारी नोट्स नहीं रख सकते आप, है ना। सो आइदर एब्सोल्युटली। इट्स अ गुड आइडिया टू हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग ऑन द फोन, जैसे वो हम्म। बोल रहे हैं आप लिखते जाओ, तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपका होता है। या फिर क्लाइंट लिख के आपको ईमेल करे, तो वो आपके पास स्टोर एब्सोल्युटली। हो सकता फॉर है। द फॉर द सेम रीजन, हम्म। कुछ लोगों के व्हाट्सएप में डिसअपियरिंग मैसेजेस ऑन होते हैं। मैं बोलती हूँ सबसे पहले तो प्लीज इसे बंद कीजिए। बिकॉज मेरे पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने क्या बात की, हमने क्या हाँ, रिजॉल्व किया। तो ये सो ये मैं दूसरा बोलती हूँ। प्रॉब्लम है। और हाँ, एक चीज मैं हम्म। उन्हें और बोलती हूँ कि कई बार क्या होता है, पास्ट लाइफ की कुछ चीजें आपको आने वाले दिनों में ड्रीम्स में दिखाई देती हैं। करेक्ट। तो मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि अगर आपको ड्रीम में कुछ और इंसाइट मिले या कुछ और नेक्स्ट सीन दिखाई दे, कोई हम्म। भी सीन दिखाई दे, आप प्लीज उसका एक नोट बनाओ एंड हम्म। देन आप मुझे उसे सेंड करो। हम्म। सो इतना तो मैंने बोलती हूँ। बट हाँ, ये आइडिया अच्छा है कि वो पूरा सेशन जब उन्होंने देखा है, जैसे देखा है और एक्सपीरियंस किया, अगर वो उसे लिखें, इट हम्म। वुड बी रियली गुड फॉर देम एंड फॉर मी एज वेल। So definitely as a therapist, डेटा डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट है। और हम कितना डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, है ना। एंड राइट। हम कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे, जैसे हमने उस सेशन को एक्सपीरियंस किया है थ्रू द क्लाइंट। राइट। पर जो राइट। क्लाइंट एक्सपीरियंस करता है वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट राइट। कैन ऐड टू आवर, इट कैन ऐड वैल्यू टू व्हाट वी आर डूइंग। सो एब्सोल्युटली। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वे टू यू नो also keep a tab as to what we are doing also। मैं कहती हूँ कि इससे सिमिलर क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, है ना। हम्म। तुमने भी कहा हाइड्रोफोबिया, तो वाटर से रिलेटेड, बट एवरी क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग इट डिफरेंटली। जनरली हम राइट। कहते हैं वाटर फोबिया, तो शायद यू मे हैव ड्राउन्ड इन वाटर और समथिंग लाइक हम्म। दैट, इसलिए आपको वाटर फोबिया है। पर कई बार बड़ा इंटरेस्टिंग पास्ट लाइफ आता है रिलेटेड टू दिस। राइट। ऐसा कभी राइट। कुछ हुआ है, जैसे तुम्हारा एक प्री कंसीव्ड आइडिया है कि हाइड्रोफोबिया मतलब इसकी डेथ पानी में हुई होगी, पर एक्चुअली ऐसा नहीं था, कुछ और ही आया, ऐसा कभी कोई केस में हुआ है? ऐसे, हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां हमको लगता है कि हाँ, काइंड ऑफ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इसका रीजन होना चाहिए, बट वो हाँ। रीजन नहीं होता है। हाँ। मैं आपको अपना ही एग्जांपल देती हूँ। बिकॉज हाँ। मैंने शादी के बाद जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, अब तो 22 साल हो गए मुझे दिल्ली में, लेकिन जब मैं नई नई यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, आई डेवलप्ड अस्थमा। हम्म। एंड जब मैंने काम सीखा तो मुझे लगता था कि डेफिनेटली मेरा अस्थमा पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, या तो मैं कहीं पानी में ड्राउन होके मरी हूँ, या किसी इनक्लोज स्पेस में हम्म। मेरी डेथ हुई होगी। ब्रेथलेसनेस क्यों आपको होती है, तो यही रीजन होगा। बट हम्म। जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ एक्सप्लोर की, सो आई फाउंड आउट दैट माई अस्थमा वाज मेटाफोरिकल
the kind of suffocation I was feeling in my marriage in one of my past life. I was very suffocated. In that state, I died, and that suffocation kind of triggered when I got married in this life. So Interesting. it was nowhere related to drowning or, getting trapped in close place or something like that. Very true. एंड Hmm. सिमिलरली एक और केस मैंने किया जहाँ मेरी क्लाइंट को लिजर्ड फोबिया था. Hmm. सो कई बार हमें लगता है लिजर्ड फोबिया इतने सारे लोगों को क्यों होता है, इसका क्या, ये भी कहीं ना कहीं मेटाफोरिकल होगा, किसी और रेप्टाइल से उन्हें डर लग रहा होगा. Hmm. कई लेकिन कई बार काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट हमें मिलते हैं. सो उसका जो फोबिया था, शी सॉ हरसेल्फ ड्यूरिंग द डेथ टाइम कि उसको किसी ने एक बॉक्स में बंद करके पानी में फेंक दिया था. Hmm. और जब पानी में उसको फेंक दिया, ऑब्वियसली उसकी ड्राउन होके डेथ हुई. Correct. तो काइंड ऑफ उसे थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल वो इनक्लोज प्लेसेस से थी, लेकिन उससे लिजर्ड फोबिया बहुत ज्यादा था. इस हद Hmm. तक कि वो उसको दिन में कितनी बार उसको ये थॉट आता था कि कहीं यहाँ कोई छिपकली तो नहीं है. उसका अगर डॉग खाना खा रहा है तो उसको चेक करिए कहीं इसमें तो छिपकली नहीं है. अगर वो खाना बना रही है तो वो आटे को बार बार देख रही है इसमें छिपकली तो नहीं है. अरे बाप रे. सो इस तरह का फोबिया उसको था. तो Hmm. उसने क्या देखा कि जब उसकी डेथ हो रही है, वो डेथ हो चुकी है, उसकी Hmm. बॉडी उस बॉक्स में अभी भी बंद है. Hmm. एंड देन वो पानी ड्राई अप हो जाता है, वो इंटेस्टेड हो जाता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े एंड ऑल दैट. एंड उन कीड़े मकोड़ों के बाद उसने देखा कि उसकी बॉडी के ऊपर लिजर्ड चल रही हैं. एंड दैट वाज द टाइम शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग इन द सेशन इटसेल्फ इन दैट ट्रांस स्टेट. और Hmm. क्योंकि वो छिपकली, जैसे हम कहते हैं अभी सोल रिट्रीवल की हमने बात की, तो एक पार्ट उसका कॉन्शियसनेस का उस बॉडी में अभी भी स्टक था. तो Correct. जब भी वो लिजर्ड को देखती थी, शी वॉज एबल टू गेट इन टच विद दैट काइंड ऑफ फेयर दैट शी वॉज फीलिंग व्हेन द लिजर्ड वर crawling ओवर हर बॉडी. Hmm. तो वो And जब मैंने उसको and बोला and कि and the body was dead. या बॉडी वॉज डेड, Ah. एंड आफ्टर Okay. दैट वो लिजर्ड उसकी बॉडी के ऊपर आई. Hmm. तो कई बार हम सोचते हैं कि जिस कंडीशन में डेथ होती है वही आपका रूट कॉज होना चाहिए, बट इट वॉज आफ्टर डेथ. सो दैट Hmm. वॉज समथिंग न्यू फॉर मी टू लर्न. करेक्ट. सो इसका मतलब है जब आपकी चेतना बॉडी से बाहर आ जाती है एंड इट इज स्टिल अटैच टू द बॉडी. या करेक्ट. तो वो या अटैचमेंट इज कॉजिंग द फियर. अगर वो एब्सोल्युटली अटैच नहीं होती उस डेड अपनी डेड बॉडी से तो वो चली करेक्ट जाती आगे, पर क्योंकि वो करेक्ट अटैचमेंट था लीड्स टू सफरिंग. तो कहते हैं ना बुद्धिज्म में अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग. तो करेक्ट. शायद ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि हम्म. अ, मृत्यु के पश्चात आपको ज्यादा देर वहां नहीं रहना चाहिए. यू शुड लीव. बट या हम्म. दिस इज इंटरेस्टिंग कि. सो जब मैंने उसको बोला कि नाउ योर कॉन्शियसनेस इज लीविंग दैट बॉडी, तो उसने एक्चुअली देखा कि एक स्पार्क ऑफ लाइट लेफ्ट दैट बॉडी एंड केम बैक टू हर. सो नाउ द फ्रैगमेंटेड पार्ट या उस पूर्व जीवन का पोस्ट डेथ पोस्ट डेथ. या was दैट there इज and समथिंग न्यू. got retrieved. Very interesting. Very, very nice. तो now मैं पूछने ही वाली थी कि ऐसा कोई केस है जहाँ पे एक फ्रैगमेंटेड सेल्फ इंटीग्रेट किया, तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल. एनी अदर या एग्जाम्पल यू वांट टू गिव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दीज फ्रैगमेंटेड सेल्व्स एंड पास्ट लाइफ एंड कैसे रिट्रीव होता है? कोई और केस तुझे याद हो तो? जैसे कि मैंने बोला कि हम जितने भी केसेस करते हैं, चाहे वो इनर चाइल्ड हीलिंग हो या वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, हम्म. जब वो डेथ होती है और अगर वो डेथ ट्रोमेटिक कंडीशन में हो रही है, तो हम्म. इट मीन्स दैट कि आपका एक फ्रेगमेंट अभी भी वहां है. दैट इज हाउ इट इज गेटिंग, इट इज यू हु इज गेटिंग अफेक्टेड इन दिस लाइफ. सो वो जब हम उस कॉन्शियसनेस को वहां से रिलीज करते हैं, सो मेरा फर्स्ट सेशन अगर मैं याद करूं, जब मैं सीख कर आई थी और मैं लोगों पे प्रैक्टिस करती थी, हाँ. जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी वहां के लोग काफी एक्साइटेड थे, हमको कराना है हमको कराना है. सो जो हाँ. वेरी फर्स्ट सेशन दैट आई डिड, तो किसी खास वजह से मुझे याद है क्योंकि वो मेरा फर्स्ट सेशन था जो मैंने यहाँ आने के बाद पहली बार किया. हाँ. एंड किस्मत से वो जो क्लाइंट था, ही वॉज अ गुड ट्रांस सब्जेक्ट. फटाफट वो ट्रांस में चला गया, उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम देखी, और डेथ सीन में जब उसने देखा, उसको ये फोबिया था इस लाइफ में कि मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ. ड्राइव क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा एक्सीडेंट होगा और मेरी गर्दन अलग हो जाएगी. ओके. सो हाँ. इट वॉज नॉट द फोबिया ऑफ एक्सीडेंट, बट गर्दन अलग हो जाएगी. वो उसको ऐसे विजुअल आते थे कि गर्दन अलग हो जाएगी. हाँ. सो जब मैं उसे पास्ट लाइफ में लेके गई, उसने देखा कि जर्मनी में वो था, जर्मन था, रिबेल था,
और उसे आर्मी ने पकड़ के जेल में डाला, उसको फांसी की सजा हुई, और जब फांसी की सजा हुई, सॉरी फांसी की सजा नहीं हुई, उसकी गर्दन काटी गई। हाँ, गिलेटिन हाँ। मतलब। सो उसने, उसकी कॉन्शियसनेस वाज स्टिल देयर, एंड इट वाज वाचिंग द होल सीन, एंड वो कह रहा था कि मैं वहां से मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी वैसे ही देख रहा हूँ अपनी बॉडी को, बॉडी एक तरफ पड़ी है, मेरी गर्दन एक तरफ पड़ी है। हम्म। सो हम्म। आई डिड द हीलिंग हम्म। एज यू टॉट अस, हम्म। उसका रिस्ट्रक्चरिंग करना, बॉडी को होल बनाना, एंड फिर करेक्ट। सो उसके बाद, so that was the part of consciousness that was stuck in that particular scene, हम्म। एंड वो मैनिफेस्ट किस तरह हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरी गर्दन अलग हो जाएगी, ऑल्दो एक्सीडेंट से कुछ लेना देना नहीं था, बट हम्म। दिस इज हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स, बिकॉज देयर इज नो हम्म। लॉजिक इन योर सबकॉन्शियस माइंड। हम्म। करेक्ट, दैट्स इंटरेस्टिंग। करेक्ट। तो पॉइंट ऑफ डेथ, ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहा है वो व्यक्ति, हेड इज गॉन आउट फ्रॉम द बॉडी, दूसरे तरफ चला गया है, वो वही है, वो राइट। एक्सपीरियंस कर रहा है इस ट्रॉमा को, वो कैरी कर रहा है उस ट्रॉमा को। राइट। एंड देन हाउ विल, एंड लॉजिकली, लॉजिकल माइंड कहेगा ना कि भाई एक्सीडेंट होगा तो कुछ होगा, बट द हम्म। सबकॉन्शियस सेज एक्सीडेंट तो हो सकता है पर तेरी गर्दन विल बी हम्म। सेपरेटेड। तो कॉन्शियस माइंड सोचता है कि ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं, राइट। बट आंसर इज गिवन बाय द सब, by the subconscious mind. So राइट। yeah, very interesting. Nice. So एंड इंटरेस्टिंगली उस सेशन के बाद धीरे धीरे, आई मीन ही टुक सम टाइम, बट दैट ही, आफ्टर दैट सेशन ही स्टार्टेड लर्निंग ड्राइविंग, एंड ही स्टार्टेड ड्राइविंग लिटिल बिट। सो वो कॉन्फिडेंस तो उसे पहले नहीं आ पा रहा था उस फोबिया की वजह से। करेक्ट, करेक्ट। सो स्लोली, है ना। आई थिंक स्लोली। क्लाइंट्स को ये बताना भी जरूरी है कि डोंट एक्सपेक्ट सम मैजिकल मिरेकल क्योर। एब्सोल्युटली। तो तुम एब्सोल्युटली। थोड़ा उनको कोच करती हो कि हाउ टू एक्सपेक्ट चेंज। मैं उनको टाइम देती हूँ कि आपको इमीडिएट 1 दिन से लेके 3 महीने तक कुछ भी टाइम लग सकता है टू नोटिस द डिफरेंस। करेक्ट। और ये भी हो सकता है कि 3 महीने के बाद भी आपको इतना प्रोमिनेंट चेंज ना दिखे। हम्म। So maybe some other healing is pending, or maybe some subtle changes have happened that you haven't noticed, or maybe there हम्म। is no change at all, but you are not disturbed about the issue and you are able to cope up better. So this is also part of healing. So मैं सारी चीजें उनको explain आई करती हूँ। थिंक ये तुमने थर्ड चीज बहुत अच्छी कही, दैट मे बी यू हैव नॉट गॉट द आंसर येट, Yeah. यू मे फील बेटर एंड Yeah. लाइफ में सीम बेटर फॉर यू। कई बार होता Right. है कि पास्ट लाइफ स्टोरी नहीं आती है आपको, बट Right. आप फिर भी हील होते हैं। Absolutely. सो दिस इज अनदर So थिंग दैट शुड बी टोल्ड टू क्लाइंट्स, या। so मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, कि ये भी हो सकता है कि आपको आंसर ना मिले, ये भी हो सकता है आप उस सेम लाइफ में ना जाओ, कुछ और देखो। सो यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू लीव एवरीथिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड मैं कोई मेजिशियन नहीं हूँ कि आपका एक वॉन्ड घुमाया और आपका सारा इशू हील हो गया। यू हैव टू वर्क विद फेथ, यू हैव टू पेशेंट इनफ टू सी द चेंजेस, एंड इफ यू डोंट सी द चेंजेस, जस्ट see how you behave in a particular situation, whether you are able to cope up with that or not. ओके, टेल मी, अभी जैसे हमने सेशन कर दिया एंड क्लोजर, हाउ इम्पोर्टेंट इज क्लोजर। Closure is very important, because everything depends upon the closure of the past life that you have seen. So हम्म। again, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ। जब हम ये कोर्स लर्न कर रहे थे, इनफैक्ट जब मैं हिप्नोथेरेपी का कोर्स लर्न कर रही थी, हिप्नोथेरेपी के कोर्स में भी आगे जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन आता है। हम्म। सो मैंने उसको दोबारा से किया था। सो हम्म। वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज काइंड ऑफ इम्पेशेंट और क्यूरियस, आई डोंट नो व्हाट, एंड बिना सीखे उसने पास्ट लाइफ हम्म। रिग्रेशन, बिना उसको उसकी ट्रेनिंग लिए उसने यूट्यूब ऑन किया और अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसने किया। सो ऑडियो। यूट्यूब में ऑडियो से, हम्म। सो यूट्यूब की मदद से या किसी टेप की मदद से जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हो, तो इट इज ओनली रिग्रेशन, इट इज नॉट थेरेपी, यू डोंट गेट हम्म। एनी क्लोजर। सो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे किसी ट्रोमेटिक लाइफ टाइम में ले गया, वेयर शी वॉज gang raped by few men, and she was so traumatized that she told me next day कि ये मैंने क्या किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, उसके बाद से मैं इतनी डिस्टर्ब्ड हूँ, आई एम हम्म। नॉट एबल टू टेक दैट सीन आउट ऑफ माई माइंड। हम्म। इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किसी ट्रेन्ड थेरेपिस्ट के पास जाओ, बिकॉज वो जो ट्रोमा होता है उससे हमें पता होता है कि उसे कैसे क्लोजर देना है, कैसे आपको उसे हील करना है, सो दैट उस सीन को लेके आप डिस्टर्ब ना हो, वो ट्रॉमा आप प्रेजेंट लाइफ पे लेके ना जाओ। बिकॉज कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमको पास्ट लाइफ नहीं देखनी, पता नहीं हम क्या देख लेंगे, हमारी प्रेजेंट लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। हम्म।
सो मैं उनको यही बोलती हूँ कि प्रेजेंट लाइफ डिस्टर्ब आपकी ऑलरेडी है, इसलिए आप आए हो थेरेपी के लिए। अब वो डिस्टरबेंस आपकी लाइफ से जाना चाहिए, या आपको वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसके साथ जी सको, उसके लिए हम पास्ट लाइफ देखेंगे। एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि वो चीज आपकी लाइफ में ट्रांसफर हो जाएगी, वो ट्रांसफर नहीं होगी, बिकॉज आई वुड बी देयर टू गाइड यू। किसी ने मुझे बोला कि व्हाट इफ आई एंड अप ओपनिंग द केन ऑफ वर्म्स। करेक्ट। तो फिर मैंने उसको ये एक्सप्लेनेशन दिया कि ओके, फेयर इनफ, केन ऑफ वर्म्स ओपन होने का चांस है, लेकिन एज ए थेरेपिस्ट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरी निगरानी में वो कैन खुल रहा है, उसमें जितने भी वर्म्स आ रहे हैं मैं उनको एक एक करके उसको साइड में करूं, उस कैन को मैं क्लीन करूं, एंड उसको मैं किसी पॉजिटिव चीज से फिलअप करूं। हम्म। So हम्म। it is right that you may end up opening the can of worms, but it हम्म। is my responsibility to clean that can and fill it with some positive thing. हम्म। So this is how closure works. ट्रू। बिकॉज क्लोजर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, तुमने सही सही तरीके से कहा कि एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो तुमने बोला है इज यूटिलाइजिंग ऑडियोज एंड वीडियोज फ्रॉम द इंटरनेट इन एन इन इन ए इनडिस्क्रिमिनेट मैनर। मतलब एक बार, Right, 2 बार, 10 बार लोग ऑडियोज को यूज करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स देयर माइंड गेट्स कंप्लीटली केओटिक, और फिर right, प्रॉब्लम्स हो सकती है उनको। एंड लाइक यू राइटली सेड दैट दिस इज नॉट थेरेपी, यूटिलाइजिंग इंटरनेट वीडियो और ऑडियो इज नॉट थेरेपी। फॉर थेरेपी यू रिक्वायर अ थेरेपिस्ट। सो absolutely. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई केस आया है बहुत चैलेंजिंग तेरे लिए, जैसे कि तुझे रिसर्च करना पड़ा या तुझे बोलना पड़ा कि भाई यू कम नेक्स्ट वीक बिकॉज आई नीड टू थिंक अबाउट व्हाट योर प्रॉब्लम इज? कभी ऐसा कुछ हुआ है? इशू के केस में तो चैलेंजिंग नहीं आया कि जहां मुझे समझ में ना आया हो कि मुझे क्या करना है, बिकॉज वी लीव एवरीथिंग टू सबकॉन्शियस। करेक्ट। सबकॉन्शियस अपने आप डिसाइड करेगा उसको कहाँ ले जाना है, उसकी कैसे हीलिंग करनी है, तो उस बारे में मुझे कभी डाउट नहीं आया। बट एक चैलेंजिंग केस मुझे याद है, क्रिमिनल लॉयर था वो मेरा हाँ। क्लाइंट, ओके। एंड वेरी लॉजिकल। हाँ। एंड बाय चांस वो मेरा स्टूडेंट भी था, हिप्नोथेरेपी में लेवल 1 उसने मेरे साथ किया। एंड व्हेन आई वाज टीचिंग ही हैड सो मेनी क्वेश्चंस एंड ही वाज कॉन्ट्रडिक्टिंग एवरी रिस्पॉन्स दैट आई वाज गिविंग हिम। एंड हम्म। ऐसा क्यों, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। एंड देन ही शेयर्ड हिज ड्रीम्स कि मुझे बहुत रिपीटेड ड्रीम्स आते हैं कि मैं एक डंजियन में हूँ एंड समवन इज रनिंग आफ्टर मी, और उसका क्या हाँ। रीजन हो सकता है, ऑल दैट। हाँ। एंड देन ही शोड हिज इंटरेस्ट कि मैं आपके पास थेरेपी के लिए आऊंगा, मुझे आपसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है, मुझे ये ड्रीम हाँ। सॉर्ट आउट करना है। हाँ। बट बाय दैट टाइम आई वाज सो फेड अप विद हिज skeptic behavior where he was not getting convinced on anything, कि हाँ। अल्टीमेटली मैंने उसको बोला कि सॉरी मैं आपका सेशन नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज क्लियरली देयर इज नो रैपो बिटवीन अस। हम्म। अगर आप मुझसे कन्विंस्ड ही नहीं हो, दैट मीन्स आपको इस थेरेपी पे या मुझ पे फेथ नहीं है, तो मैं आपको कोई और थेरेपिस्ट सजेस्ट कर सकती हूँ, बट मैं आपका सेशन नहीं करूंगी। मैंने उसको हाँ। क्लियरली मना दिया, हाँ। बिकॉज टाइम वेस्ट होता मेरा भी और उसका भी, देयर वाज नो हाँ। पॉइंट। हाँ। एंड ये आंसर सुन के थोड़ी देर एकदम चुप हो गया। एंड देन आफ्टर सम टाइम, नहीं मैडम थेरेपी तो मैं आपसे ही कराऊंगा। हाँ। सो आई वॉज लाइक ओके। एंड फिर मैंने उसको बहुत क्लियरली बोला कि देखिए मैं आपकी थेरेपी, ठीक है आपको मुझसे करवानी है, आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, हाँ। लेकिन मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ कि आप ट्रांस में जाके वो लाइफ टाइम देख लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको एक चांस लेना पड़ेगा, हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है आपको नहीं भी मिले। हाँ। आप ये मान के चलिए कि आपको 1.5 2 घंटे 2.5 घंटे अपने लगाने हैं, इतना फीस आपको पे करना है, और उसके बाद हाँ। भी अगर आपको आंसर नहीं मिला, आर हम्म। यू स्टिल ओके, देन ओनली कम टू मी। हाँ। सो मैंने अपने आप को वहां फ्री कर लिया कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस केस में ना रहे, हाँ। कि बिकॉज जो उसका माइंडसेट था कि नहीं ऐसा कैसे और वैसा कैसे, देन ही अग्रीड कि ओके। हम्म। मैंने उसको एक्सप्लेन किया, आपको आपको फुल सरेंडर के साथ आना है, आपको विश्वास के हाँ। साथ आना है। फिर मैंने उसको एक एफर्मेशन दी आने के पहले कि प्लीज आप इस एफर्मेशन को कीजिए, हम्म। बिकॉज मैं अक्सर देती हूँ एफर्मेशन कि वो उसका माइंड उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। हम्म। सो वो पर्सन आया थेरेपी कराने, ये मेरे लिए मोस्ट चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं एक ऐसे क्लाइंट के साथ डील करने वाली थी जो ट्रांस में नहीं जा रहा है, जो किसी बात से कन्विंस नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा था कि अब क्या ही इसका सेशन होगा और क्या निकल के आएगा। बट सिंस मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि हम ट्राई कर रहे हैं, जरूरी हाँ। नहीं है आपको आंसर मिले। हाँ। आप बिलीव नहीं करोगी मैम कि जैसे ही वो ट्रांस में गया, मैंने उसको कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया कि अब आपको इस पास्ट लाइफ में एंटर करना है। हम्म। ही स्टार्टेड सीइंग द सीन फ्रॉम द पास्ट लाइफ,
एंड एक के बाद एक उसने 2 पास्ट लाइफ देखी एंड उसको आंसर मिल गया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। करेक्ट। सो ये होता है कभी, बट आई थिंक ऋचा तुमने बहुत मेच्योरली हैंडल किया ऐसे क्लाइंट को, बोलने से कि दिस इज इट, द फैक्ट इज दिस, अगर आप नहीं देख पाए तो उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यू ऑल्सो सेड आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू, गो टू समबडी एल्स, एंड देन ही इंसिस्टेड। दैट समटाइम्स कैन make a person feel, okay, you think that I will not go in the past life, now I'm going to prove to you that I'll go in my past life. So the एब्सोल्युटली। client can do that. Yeah, very interesting, very nice. And he got his answers also. एब्सोल्युटली आई वाज आल्सो अमेज्ड कि एक नहीं उसने 2 पास्ट लाइफ देखी एक के बाद एक ऑन इट्स ओन, एज इफ हम्म। कि हिज सोल वाज इन हरी कि अभी ये मौका है, देख लो फटाफट सारे आंसर निकाल लो। बट उसके लिए उसे मेंटली प्रिपेयर करना, उसे कंडीशन करना जरूरी था। तो हम्म। वैसे भी कोई और भी क्लाइंट होता है तो मैं किसी तरह का कोई प्रॉमिस नहीं करती हूँ, मैं सारे उनको चैलेंजेस एक्सप्लेन करती हूँ हम्म। कि सी ये ऐसा ऐसा होता है। एंड कई लोगों को आंसर मिले हैं, कई लोगों को रिलीफ मिला है। सो लेट्स होप आपके लिए भी ये वर्क करे, बट इन केस अगर नहीं करता है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। Fantastic. I think clarity, Richa, you've always been a very clear-headed person. I've known you like that. तो मुझे लग रहा है कि clarity from a therapist to the client is very important. And false promises obviously should never be made. वो तो कभी नहीं करना चाहिए हमको. एब्सोल्युटली। Because वो हमारे हाथ में है ही नहीं. Like you rightly said, everything lies in the client's subconscious. And the subconscious only will give the client the answer. Not you and me are not going to give you the answer. और इसलिए मैं हमेशा एब्सोल्युटली। कहती हूँ दैट वी आर नॉट हीलर्स, वी आर जस्ट थेरेपिस्ट। हम सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं प्रोसेस को। वट एवर इज बीइंग डन बाय द क्लाइंट हिमसेल्फ। So I think this clarity is very important as a therapist, and you are definitely giving it to the clients a lot. So, as a teacher of hypnosis and hypnotherapy, how do you feel clients are, students जो आपके पास आते हैं, are they very interested in knowing about themselves, or they want to learn, they want to move in this field? What is the new breed of people coming to you, and what is the age group that is interested? वो बताओ मुझे। एज ग्रुप काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज फ्रॉम द एज ऑफ 16 years टू 60+, हाँ। ऐसे लोग मुझे अप्रोच करते हैं। सो ऑब्वियसली जो 16 ईयर का बच्चा है उसको मैं बोलती हूँ प्लीज वेट टिल यू आर 18, हाँ। बिकॉज इट इज नॉट एडवाइजेबल। हम 18 के अंदर, इनफैक्ट आपके पास भी सीखने के लिए आते होंगे तो आपका आई एम श्योर यही हाँ। क्राइटेरिया होता होगा करेक्ट। कि यू शुड रीच अ सर्टेन एज। एंड जो 60+ आते हैं ऑब्वियसली उनको उनके साथ कोई इशू नहीं है बिकॉज इट इज देयर टाइम, दे वांट टू यूटिलाइज इन देयर ओन वे। करेक्ट। कई बार वो अपने इंटरेस्ट की वजह से सीखना चाहते हैं, उन्हें कुछ चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं, इंट्रीगिंग लगती हैं, इसलिए वो सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ बेटर बनाना चाहते हैं। सो हम्म। मुझे खुशी होती है कि इस एज में अगर कोई नई चीज सीखना चाहता है सो आई वेलकम देम। हम्म। एंड रीजन कुछ भी हो सकता है, सेल्फ हेल्प से लेके अपना करियर बनाने तक। कई लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ इसे सेल्फ हेल्प की तरह सीखना है कि हिप्नोथेरेपी अगर मैं सीख जाऊं तो मैं अपनी हेल्प कर सकती हूँ, अपने फैमिली की हेल्प कर सकती हूँ। जब मैंने सीखा था पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो हम्म। मेरा यही आइडिया था कि मुझे हम्म। अपनी हेल्प करनी है, अपने जान पहचान वाले लोगों की हेल्प करनी है। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें कितना करियर बना सकती हूँ। करेक्ट। इनफैक्ट जब हिप्नोथेरेपी सीखी थी तब भी मुझे नहीं पता था कि ये कितने आगे तक मैं जा सकती हूँ इसमें। हम्म। सो ऐसे कई लोग मेरे पास आते हैं जो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए सीखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और वो सोचते हैं कि अगर जैसे उन्होंने सेशन लिया और उनको फायदा हुआ तो उनको इंटरेस्ट आया कि अगर मुझे फायदा हुआ है तो मैं भी लोगों की हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसलिए वो सीखना चाहते हैं। सो वाइड वेराइटी ऑफ पीपल हु वांट टू लर्न हिप्नोथेरेपी। Fantastic, Richa. Richa, you are one of those people, I always say, who has grown in this field for the last so many years. कुछ ना कुछ सीखती रहती हो और अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर रही हो हर चीज जो तुमने सीखी हुई है। आई थिंक दैट्स अ प्लस पॉइंट दैट यू हैव, रिचा। और दूसरा है क्लैरिटी, तुम्हारे अंदर बहुत क्लैरिटी है हर चीज को लेकर, और तुम अपने स्टडी कंटिन्यू करती रहती हो, client to client, studying further, 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 making the client situation better. So that's a huge change that I'm seeing. I think you came, कब आई थी मुझे याद भी नहीं है ट्रेनिंग के लिए। 2012 में मैंने आपका
2 days वाला वर्कशॉप अटेंड किया था, हाँ देन 2014 का जो बैच था, हाँ 2014 का तो ट्रेनिंग बैच था, ऋषिकेश वाला था, है ना? and it feels so nice when you get compliment from your mentor. So thank you so much, No, ma'am. definitely. I think you're doing a great job. Or Thank you so becoming much. a teacher of hypnosis and hypnotherapy is a very big thing, a feather in your cap, Richa. कहाँ से तुमने start किया और अब तुम कहाँ हो? Makes me feel so proud, really. And thank you for this super conversation today. Richa, any last few words as a therapist, as a facilitator that you'd like to tell the audience? So there is only one thing that I believe 100%, and I want people to believe in it, is in the power of your subconscious mind. आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, नो मैटर व्हाट, you can solve every problem, or you can at least cope up with every problem by using your subconscious mind. So you should be aware how your subconscious mind works, and how can you make your subconscious mind your slave. You don't have to become slave of your mind. You have to know how to use it properly for your own benefit. बिकॉज कई लोगों को नहीं पता है, सिर्फ इतना मोटा मोटा पता होगा कि ओके दिस इज कॉन्शियस माइंड, दिस इज सबकॉन्शियस माइंड. आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड and to start working with their subconscious mind. Fantastic, fantastic, Richa. The power of the subconscious mind is phenomenal. And जब तक आप Absolutely. अपने मन को एक्सप्लोर करते रहेंगे तो आपको जेम्स जो आपके मन के अंदर है, टैलेंट्स जो आपके मन के अंदर दबी हुई है, वो सब बाहर आ सकती है. जैसे कि योर Absolutely. टैलेंट विच वाज सप्रेस्ड केम आउट, right? Through the power of the Absolutely. subconscious mind. That's exactly where you have reached today. So thank you, Thank you so much, Richa, ma'am. again, and thank you for coming in for the conversation. And I wish Thank you so much, ma'am. lots मुझे of आपने luck. invite किया, मुझे सुना इतनी देर. And it is always wonderful to discuss things with you because you have immense knowledge. So it is like, sitting with you, talking with you. It has been always pleasure. So Thank thank you you. very much, ma'am. Thank you. Thank you, Richa, so much. And everybody keep watching Purnamada.